Okay guys, here I am with the previous year questions for biological classification topic. तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने बस 15 क्वेश्चंस लिए हैं, जस्ट एक आइडिया आपको देने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं. ओके, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो वंस आई finish all the syllabus, then I'll discuss in detail like 100-200 questions for each lesson. तो अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आप वीडियो पॉज करके अपने मन में आंसर आप सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं अपने मन से आंसर और खुद को टेस्ट कर सकते हैं. 5 किंगडम system of classification was suggested by Robert Whittaker is not based on. So basically, the three majorly we can say the three characteristics: presence or absence of well-defined nucleus, complexity of body organization, and mode of nutrition were the major, while the mode of reproduction was not majorly considered by him or explained by him for all the organisms. Okay, so answer will be mode of reproduction. Let's move to the next question. Again, pause the video, read the question. आपका जो आंसर है वो आप फाइनल करिए. ओके, देन लिसन टू द आंसर. ओके, सो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ. सो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड टू बी इन मोनेरा ग्रुप. ओके, बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरियाज या फिर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी यहाँ ज़्यादा होगी. ओके, इनके जो फूड हैबिट्स हैं वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड और वाइड रेंज में फैले हुए मिलेंगे. दैट इज द मीनिंग. ओके, सो मोनेरा इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, you just read the question, pause the video. Again I am saying, pause the video, read the question. आपका जो आंसर है वो सोचिए, देन आंसर देखिए. नहीं तो ऐसे ही आंसर देख लेने में कोई फायदा नहीं है. आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, लर्न किया है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो सारे आंसर्स आपको आने चाहिए. चलिए, in the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included. So याद होना चाहिए, ये पूरा पॉइंट हमारे पास था ये क्वेश्चन का. ठीक है, so they were included in Protista. We discussed in the lecture. Okay, हालांकि Chlamydomonas and Chlorella algae में बिलोंग करते हैं, पर उन्हें पहले प्रोटिस्टा में रखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. In which kingdom would you classify the archaea and the nitrogen fixing organisms of the 5 kingdom system of classification is used? So in which kingdom archaea and nitrogen fixing bacteria and archaebacteria, eubacteria, cyanobacteria we have learned in Monera. Yes, let's move to the next. So easy questions. In 5 kingdom system, the main basis of classification is not a sexual, structural, no structure of nucleus was not. The main was mode of nutrition. Okay, let's see question number 6. In 5 kingdom system classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, cyanobacteria they are talking about? So directly we can go under Monera and then we can learn there, revise है ना, कर सकते हैं अगर याद नहीं आ रहा है. Nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria, so they again belong to group Monera. Okay, मैंने अभी अभी रीड करते टाइम ही कहा मोनेरा में है. Next question, blue-green algae are included in which of the following groups? So BGA means cyanobacteria, they are included in Monera. यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए प्रोकैरियोट्स. ठीक है, ब्रायोफाइट्स नहीं हो सकता, प्रोटिस्टा में नहीं इंक्लूड होते, फंजाई में नहीं होते. नेक्स्ट, an important criteria for modern day classification is, आज के टाइम पे resemblance in morphology, anatomical and physiological traits, breeding habits, presence और absence of notochord. नहीं, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम बस एनिमल्स के केस में तो नहीं बात कर रहे हैं ना, हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बातें कर रहे हैं.
ब्रीडिंग हैबिट्स पे हम बात नहीं कर सकते। हमें हमेशा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स यानी कि उनके बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्राइटेरिया कंसिडर करना पड़ता है या क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ मैच करने हैं, ये पूरा पोर्शन मोनेरा उन बैक्टीरिया वाले टॉपिक से है जो पहला पार्ट 1 वाले लेक्चर में हुआ है। सो मैच द ऑर्गेनिजम्स विद कॉलम 1 विद हैबिटेट्स। सो ये सारे उनकी हैबिटेट्स यानी जहाँ वो रहते हैं। हेलोफाइल्स हमने बात की थी। सो वो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्ट लविंग। थर्मो एसिडोफाइल्स मीन्स हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है। सो हॉट स्प्रिंग्स। मिथेनोजेंस गट्स ऑफ रुमिनेंट्स, रुमिनेंट्स मीन्स कैटल्स के गट्स में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। मिथेनोजेन मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग है, कम्स अंडर आर्केबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना, जैसे कि नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, हमने बात की उनके बारे में। ओके, तो जो इस सीक्वेंस को फॉलो करे वही आपका आंसर। सो ए फॉर ए इट इज फोर्थ, सो फर्स्ट इज द आंसर, वेरी इजी। Okay, let's move to the question number 10. So question number 10, which of the following are found in extreme saline conditions? Again, जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया था एक्सट्रीमिटीज में रहने वाले एक ही है हीरो या आर्मी आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, ए से शुरू होता है आर्के बैक्टीरिया, आप ऐसे याद रख सकते हो। जिस तरह से इंडियन आर्मी जो है एक्सट्रीमिटीज में रहती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहती है, ठंडी गर्मी बॉर्डर्स, ठीक है, बहुत डेंजर जोन में रहती है, तो इसी तरह अनफेवरेबल जोन में आर्की बैक्टीरिया भी रहते हैं। नीट में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, can survive without oxygen? This statement also मैंने जब पढ़ा रही थी तो आपको कहा था कि important है, ये पूछा जाता है। So answer will be mycoplasma. ओके, माइकोप्लाज्मा के ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो सेल वॉल लैक करता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following components provide sticky characters to the bacterial cell membrane? So we have learned this is a property glycocalyx, जिससे उनके सरफेस को स्टिकी बनाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक केमिकल सब्सटेंस है बैक्टीरिया की बॉडी पर। Question number 13, DNA replication in bacteria occurs within nucleolus. ऐसा कोई स्पेसिफिक ज्यादा स्ट्रक्चर तो है नहीं बैक्टीरिया में, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस भी नहीं है। प्रायर टू फिशन, नहीं। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन से पहले होगा। ओके, आपको पता नहीं रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये भी मैं इसके भी लेक्चर्स बनाने वाली हूँ ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम उन टॉपिक्स में पहुंचेंगे। ओके, सो बिल्कुल डरिए मत, स्टिक कनेक्टेड रहिए, आपको रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, सो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आर्के बैक्टीरिया 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नाउ last but not the least question, the primitive prokaryotes responsible to produce biogas from the dung of ruminant, ruminant के guts में रहने वाले, dung में भी रहेंगे, ठीक है, तो वो है मिथेनोजेंस, बिलोंग करते हैं आर्के बैक्टीरिया को। ओके, ये भी 2016 में पूछा गया है। सो इस तरह से 15 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए जो कि मोस्ट ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा इन्हीं ग्रुप्स से थे एंड कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे। ओके, सो आप भी, आपके पास जो भी सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस बुक्स आपने खरीद के रखी हैं, प्रेजेंटेशन से पढ़ाई करिए, वीडियोस से जो मैंने प्रोवाइड की है, और उन्हीं टॉपिक्स में से आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, सो आई होप आप, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि न्यू वीडियो आते ही सीक्वेंस में आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, पर नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो
सब्सक्राइब ना करने की वजह से नहीं मिल सकता। ओके, तो सब्सक्राइब करिए, तो आप एक सीक्वेंस में रहेंगे लेक्चर के साथ, तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी आएगा। थैंक यू, बाय बाय।